अच्छा, यहाँ पर आप देखें ट्रांजिस्टर ऑपरेट किस तरह करता है। तो एरिया वाइज तो हमें पता चला कि कलेक्टर जो है ना सबसे बड़ा होता है, कलेक्टर इज द लार्जेस्ट वन, देन एमीटर, एंड देन so it's very the base region is very narrow as compared to the other two. So how the device works, remember please, because there are two PN junction. One PN junction is between collector and base, and one PN junction is between emitter and base. Emitter and base, one PN junction, and base and collector, another PN junction. And for the operation of the transistor or the device, base emitter junction base emitter junction is forward bias, and collector base junction is reverse biased. क्या क्या मैंने what I said? Base emitter junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. This is the normal operation of the device. So base emitter junction is forward biased, collector base junction is reverse biased. So initially, look at the device operation. Base emitter junction is forward biased, so current is due to majority carrier. अच्छा, डॉपिंग लेवल अगर आप देख लें, ये तो हमने रीजन वाइज मतलब लेंथ वाइज एरिया वाइज देखा है। जो एमिटर रीजन है ये हैवीली डॉप्ड होता है, और जो कलेक्टर रीजन है ये एमिटर के मुकाबले में एज कम्पेयर टू एमिटर इट इज लाइटली ड्रॉप। लेकिन जो बेस रीजन है ये सबसे जो है ना लाइटली ड्रॉप्ड होता है। So the damping level of base is much smaller as compared to the emitter and collector. तो सबसे जो ड्रॉप्ड होता है, heavily ड्रॉप्ड होता है, वो emitter, फिर collector and then base. So when we forward bias the emitter base junction, the current is due to majority carriers, and this is a small current. And normally this base current is in microampere. And when collector base junction is reverse bias, now the depletion region becomes further widened between collector and base region, and current is due to minority carriers. In N region, minority carriers are the holes, majority carriers are the electrons. In P region, majority carriers are the holes and minority carriers are electrons. So when the junction is reversed bias, current is due to minority carrier, and this current is called reverse saturation current, which is the leakage current. And when the PN junction is forward bias, the current is due to majority carrier. So this is the forward current. Now what happened? अच्छा, एक चीज याद रखें, ये V है उसके साथ डबल C लिखा हुआ है, VCC. So for the voltage, when we use double C subscript and the subscript both are the same, both letters are the same, they represent power supply. They represent power supply. So VCC, VEE, VBB, they all represent the power supply. अभी वो क्या आ रहा है, ये हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर
ये देखें आप, ये जब करंट यहाँ पर आ जाते हैं पी रीजन, तो ये जो करंट है एमीटर करंट, इसमें से थोड़ा सा करंट जो है ना वो बेस लेता है, बाकी करंट जो है ना वो कलेक्टर की तरफ चला जाता है। तो कलेक्टर करंट में दो किस्म के कैरियर्स आते हैं, एक मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से आता है और एक मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो करता है, क्योंकि पीएन जंक्शन आपने रिवर्स बायस किया है। सो इन टोटल एमीटर करंट बराबर हो जाता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। लेकिन वो ये होता किस तरह है, अगर आपसे पूछ लें, जो मेजॉरिटी कैरियर्स बेस के अंदर आ जाते हैं वो मिनॉरिटी बन जाते हैं। तो जो कलेक्टर करंट है उसमें दो कंपोनेंट है, एक पहले से जो मिनॉरिटी कैरियर्स है उसकी वजह से जो करंट आ रहा है, और एक वो मेजॉरिटी कैरियर जिन्होंने पीएन जंक्शन को क्रॉस किया और बेस के अंदर आ गए, उससे मिनॉरिटी कैरियर बन गए। तो दो किस्म के आपके पास करंट है, एक ऑलरेडी मिनॉरिटी कैरियर और एक मेजॉरिटी कैरियर की वजह से। So I is equal to IC plus IB. ये तो इन्होंने कन्वेंशनल करंट को शो किया है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को इस एरो को उल्टा देख रहे हैं तो आपको नजर आ जाएगा कि एन के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो शो करता है ये सारे कन्वेंशनल करंट को, क्यों कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो जाता है और नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट होता है। तो कलेक्टर करंट के अंदर दो किस्म के कैरियर्स इन्वॉल्व हैं, IC majority plus ICO minority. ICO means IC the collector current when emitter terminal is open. तो ये कौन सा करंट है, इधर देखें, ये जो आपको सर्किट नजर आ रहा है इसमें देखें एमिटर ओपन है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और इसमें इस करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ICO से रिप्रेजेंट करते हैं। collector current when emitter terminal is open and this is due to minority carrier। तो कलेक्टर करंट जो है उसमें दो किस्म के करंट्स इन्वॉल्व हैं, एक मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से और एक मिनॉरिटी कैरियर वजह से। मिनॉरिटी कैरियर्स जो ऑलरेडी मिनॉरिटी कैरियर्स कलेक्टर और बेस के अंदर मौजूद हैं, कलेक्टर के अंदर कलेक्टर रीजन में जो मिनॉरिटी कैरियर है वो होल्स है, और पी रीजन के अंदर जो मिनॉरिटी कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन। ये कलेक्टर करंट में दो करंट कहाँ से आ गए, from where we get two currents, one is IC majority and one is ICO minority। IC majority is that part of the current that comes from the emitter region। So when this carrier come to the base, and because emitter collector base junction is reverse bias, so inside base this majority carrier also become minority carrier, and that is why this majority carrier also cross the PN junction which is reverse bias between collector and base। So there are two currents involved, IC majority and ICO minority। ICO means collector current when emitter terminal is open। बताएं प्लीज, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन। नो सर। क्लियर हुआ कि ये कलेक्टर के अंदर दो करंट कहां से आ गए, ये IC मेजॉरिटी कहां से आ गया,
ये सर एमीटर से आ गया। ये एमीटर से, ये चार्ज कैरियर जब बेस में आ जाते हैं तो ये भी मिनारिटी बन जाते हैं। क्यों मिनारिटी बन जाते हैं? क्योंकि आपके पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। तो जब रिवर्स बायस है तो आपके पास तो करंट मिनारिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है ना, जब आपके पास पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए, विच इज द Yes. सिचुएशन रिवर्स सिचुएशन करंट। तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स एमिटर रीजन से बेस में आ जाते हैं तो वो भी मिनारिटी बन जाते हैं, और मिनारिटी पहले से भी मौजूद है। तो लेकिन ये जो ICO मिनारिटी है ये काफ़ी कम होता है उसमें, इसकी जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी है, इट इज़ वेरी स्मॉल। सो नॉर्मली वी नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी, वी आर जस्ट लेफ्ट विद IC majority. So collector current and emitter current, they are in milliampere under normal condition, and base current is in microampere. This is the symbol for PNP transistor. Arrow is always pointing from P to N. तो ये हमारे पास बेस है, ये है कलेक्टर और ये है एमीटर। So arrow is always pointing from P to N. It means P to N. It means the base is N. It means the collector is P. Similarly, the arrow is always pointing from P to N. It means, and this arrow is always on the emitter terminal. ये भी याद रखें, ये arrow कहाँ पर होता है? emitter terminal के ऊपर होता है। So the arrow is always on the emitter terminal. We put the arrow on the emitter terminal. So arrow is pointing from P to N. P to N, इसका मतलब है जो लोअर वाला है वो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है। क्योंकि P to N है नीचे वाले, तो इसका मतलब है बेस इज P and the emitter is N, it means collector is N. The outer layers are the same and the sandwich layer is different. So NPN, the outer layers are collector and base, which are the N material, and the sandwich layer is P, which is base. Common base configuration. अच्छा, ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल्स हैं? 3। अच्छा, 2 पोर्ट सिस्टम के थ्योरी के मुताबिक 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं। We have a pair of input terminals and we have a pair of output terminals. लेकिन ट्रांजिस्टर पे जब आप 2 पोर्ट सिस्टम थ्योरी अप्लाई करते हैं तो ये तो 3 टर्मिनल्स हैं, 4 टर्मिनल कहाँ से लाएंगे आप बताएं? अभी इसका सोल्यूशन भी चाहिए ना। तो सोल्यूशन क्या है मसले का? व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? What is the solution of the problem? Repeat it again. हाँ, Sir. क्या क्या है? According to 2 port system theory, we have 2 input terminals and we have 2 output terminals. A pair of terminal is called port. So we have input port, we have output port. A pair of terminal is called port, P-O-R-T, port. So input port, बेस को इनपुट मीटर पोर्ट input port and output port. तो ट्रांजिस्टर बेचारे के तो 3 टर्मिनल्स हैं और 2 पोर्ट सिस्टम थ्योरी के मुताबिक 2 इनपुट टर्मिनल होने चाहिए और 2 आउटपुट टर्मिनल होने चाहिए। तो क्या सोल्यूशन का मसला मतलब है, सोल्यूशन क्या है? हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? One will act both in output and input, sir. Yes, one terminal should be common between input circuit and output circuit. This is the solution of the problem. तो अगर आप बेस को टर्मिनल को कॉमन करें इनपुट और आउटपुट सर्किट के दरमियान, सो दिस इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब है।
अगर कलेक्टर को कॉमन करें इनपुट और आउटपुट सर्किट के दरमियान, देन दिस इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. If the emitter terminal is common between input circuit and output circuit, then it is called the common emitter configuration. इनपुट सर्किट वो पोर्शन है सर्किट का जहां पर आप सिग्नल अप्लाई करते हैं, और आउटपुट सर्किट वो पोर्शन है सर्किट का जहां से आप आउटपुट सिग्नल लेते हैं और लोड के साथ फिर कनेक्ट करते हैं. तो जहां पर सोर्स कनेक्ट करते हैं इनपुट सोर्स, वो इनपुट सर्किट होता है. जहां पर आप लोड कनेक्ट करते हैं वहां पर आपके पास वो, जहां पर आप आउटपुट लेते हैं वो आउटपुट सर्किट हो जाएगा, या आउटपुट पार्ट ऑफ द सर्किट. तो आप जरा बताएं, आपने एक एम्पलीफायर बनाना है, उसके साथ आपने इनपुट सोर्स भी कनेक्ट करना है और आउटपुट सोर्स भी कनेक्ट करना है. तो इनपुट सोर्स क्या होगा और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट पे क्या लगाएंगे, इनपुट पे आप क्या लगाएंगे? अगर आप अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा? जल्दी बताएं. इनपुट पे सर आवाज कनेक्ट करेंगे आवाज़ के लिए क्या कनेक्ट आउटपुट करते हैं? माइक कनेक्ट होगा. माइक कनेक्ट करेंगे. और आउटपुट पे क्या आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे? स्पीकर होगा. स्पीकर होगा. तो वो जो लोड है वो आपका स्पीकर बन जाएगा, और जो माइक है वो आपका इनपुट सोर्स बन जाएगा. ठीक है. तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर. जिस टर्मिनल को भी आप कॉमन रखेंगे इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के दरमियान, तो उसकी करेस्पॉन्डिंगली उसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा. सो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? It consists of base to be common between input circuit and output circuit. एंड ये तो आपको पता है ना, ये तो आप जब आप इसके ऊपर KCL अप्लाई करें, I is equal to IC plus IB, नोट के ऊपर आप अप्लाई करें, तो you see that collector current and base current, when we add it gives the emitter current. तो ये जो सर्किट बन रहा है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है. तो सर्किट को ऑपरेट करने के लिए क्या मैंने बताया, कौन से जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे, कौन से जंक्शन को रिवर्स बायस करने के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए. ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर जब आप इस्तेमाल करते हैं, कौन से जंक्शन फॉरवर्ड बायस होते हैं, कौन से रिवर्स बायस होते हैं? जल्दी बताएं प्लीज. 2 ही जंक्शन है ना, एक कलेक्टर बेस जंक्शन है और एक एमिटर बेस जंक्शन है. तो कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा रिवर्स बायस होगा? मीटर सर फॉरवर्ड बायस होगा. Base emitter junction should be forward bias and collector base junction should be reverse bias, or base collector junction should be reverse bias. ठीक. अच्छा, जब कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टडी करते हैं तो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे पास आनी चाहिए. एक को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे को कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? आई और वी प्लाट आपके पास होता है, उसमें से एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, बाकी देखते हैं उसका बिहेवियर किस तरह आपको नज़र आता है. तो इनपुट पे आपके पास अभी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है. तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सिग्नल किधर अप्लाई करेंगे और आउटपुट कहाँ से लेंगे, सवाल ये पैदा होता है. In common base configuration, the input signal is applied at the emitter and the output is taken from the collector. In common base amplifier circuit, the input signal is applied at the emitter terminal and output signal is taken from the collector terminal. Clear भाई? थोड़ा रिपीट कर. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में सिग्नल आप कहाँ पर अप्लाई करते हैं? एमीटर टर्मिनल के ऊपर.
और जो आउटपुट सिग्नल आप लेते हैं वो आप कलेक्टर से लेते हैं। Sir. अभी क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes. इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड एट द emitter terminal and the output signal is taken from the collector terminal. Clear? Yes. Sir. अच्छा, तो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स आर ड्राइविंग करेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट पे आपके पास एमीटर करंट है और VBE है, इनके दरमियान ग्राफ आप देख रहे हैं, और इसमें जो इस वोल्टेज को आप देख रहे हैं, जिसका इफेक्ट आप देख रहे हैं, वो VCB है, और ये जो एमीटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होता है। तो इनपुट पैरामीटर आपके पास IE इनपुट पैरामीटर है और VBE इनपुट पैरामीटर है, और इसमें जो VCB है ये है आपके पास आउटपुट वोल्टेज। तो आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स को ज़रा देख लें। अच्छा, ये जो है ना सारे DC क्वांटिटीज़ हैं, ये जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये सारे कैपिटल हैं। आई देख लें, आई कैपिटल है, साथ जो ई लिखा हुआ है ये भी कैपिटल है, तो ये DC क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। VCB है, C कैपिटल, B कैपिटल, तो ये DC क्वांटिटी है। VBE ये भी DC क्वांटिटी है। ये क्या बता रहा है आपको, इस अगर इस वेव फॉर्म्स को देख लें, ये क्या बता रहा है? VCB is equal to 1 volt, VCB is equal to 10 volt, VCB is equal to 20 volt. ये करेक्टरिस्टिक्स किस तरह नजर आते हैं? इस तरह करेक्टरिस्टिक्स हमने अभी एक चैप्टर स्टडी कर रहे थे ना, इससे डायोड वाला, तो ये PN जंक्शन से मिलते जुलते करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही जो डायोड वाला है, डायोड की करेक्टरिस्टिक्स है उससे मिलते जुलते हैं, वही है। क्योंकि हमारे पास जो बेस एमिटर जंक्शन है वो तो फॉरवर्ड बायस है, तो डायोड की तरह बिहेव कर रहा है ये। IE को देख लें, किस वोल्टेज के ऊपर रैपिडली IE इंक्रीज हो रहा है, किस वोल्टेज के ऊपर? 20 volts. 20 वोल्ट पे। इसका मतलब है जब आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो IE जो है ना वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। VCB जो है ना उस कम वोल्टेज पे देख ले तो आहिस्ता आहिस्ता IE बढ़ रहा है, लेकिन जो रैपिड चेंज आ रहा है IE के अंदर वो है VCB 20 वोल्ट पे। इसकी मिसाल आप इस तरह देख लें, आपके पास एक कुआं है, उससे एक बच्चा पानी निकाल रहा है, उससे एक जो है ना आप देखें एक नौजवान पानी निकाल रहा है, तो कौन, आप टाइम को अगर टाइम के लिहाज से और क्वांटिटी के लिहाज से देख लें तो कौन ज़्यादा जो है ना वो जल्दी पानी कुएं से निकालेगा आपके ख्याल में, और क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, वो बच्चा या नौजवान? नौजवान सर। हाँ, तो वो जो रैपिड राइज है उसमें जो कलेक्टर एमिटर करंट में आपको नज़र आ रहा है, VCB के इंक्रीज करने से IE रैपिडली बढ़ रहा है। तो ये आप देखें यहाँ पर, टू फुली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए 3 टर्मिनल डिवाइस सच एज कॉमन बेस एम्पलीफायर वी रिक्वायर 2 सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। कितने सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स चाहिए? एक को कहते हैं इनपुट करेक्टरिस्टिक, दूसरे को कहते हैं आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। The input set for common base amplifier relates the input current to the input voltage for various levels of the output voltage VCB. तो IE input current है, VBE input voltage है, and VCB is the output voltage. अच्छा, इनपुट में क्या होगा? The output set
आउटपुट में कौन से पैरामीटर हैं आपके पास? कौन बताएगा आउटपुट पैरामीटर कौन से हैं आपके पास? व्हाट इज द आउटपुट करंट एंड व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? लोड सर। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज कौन सा होता है और आउटपुट करंट क्या होता है? लोड करंट, लोड वोल्टेज। वो कौन सा वोल्टेज है? एम्पलीफायर के सर्किट में, एम्पलीफायर सर्किट के केस में कलेक्टर करंट इज द आउटपुट करंट and VCB, the voltage VCB is the output. VCB is the output voltage, IC is the आउटपुट करंट। और अच्छा, इनपुट क्वांटिटी क्या होगी आपके पास? IE होगी। एक चीज याद रखें, जो BJT है एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। किस किस्म का डिवाइस है ये? इट इज करंट कंट्रोल डिवाइस। BJT इज द करंट कंट्रोल डिवाइस। तो कौन सा करंट कौन से करंट को कंट्रोल कर रहा है? नॉर्मली तो बेस करंट कलेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ना। नॉर्मली क्या होता है? कलेक्टर करंट, बेस करंट इज कंट्रोल, कलेक्टर करंट इज कंट्रोल बाय द बेस करंट। लेकिन जो इनपुट करंट है वो आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रहा है। तो इनपुट करंट आपके पास IE है, आउटपुट करंट आपके पास IC है। तो दो किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक को कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक को कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है आपके पास IE वर्सेस VBE फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VCB। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो होते हैं IC वर्सेस VCB फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ IE। गेन क्या होता है? व्हाट इज गेन? व्हाट इज द वोल्टेज गेन? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। करंट गेन क्या होता है? आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय द इनपुट करंट। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट जो करंट गेन है वो किसके बराबर होता है? व्हाट इज द इनपुट करंट? ये नजर आ रहा है आपको? व्हाट इज द इनपुट करंट? IE। What is the IE, IE? What is the output current? IC IC, तो रेशो किसके बराबर हो जाएगा? IC by IE IC डिवाइडेड बाई E। इस करंट गेन को क्या कहते हैं? IC और IE को हम क्या कहते हैं? कौन सा सिंबल से, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? alpha अल्फा। बीटा सर। वो बीटा नहीं, खुदा के बंदे, अल्फा। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा की वैल्यू ये 1 से ज्यादा होती है, 1 से कम होती है? बिटवीन 0 and 1। मतलब है 1 से कम होती है, 0 तो नहीं होनी चाहिए ना। ये 1 से कम होती है। 1 से क्यों कम होती है? IC output is less than IC is less than IE। IC किस अमाउंट से IE से कम होता है? IB के amount. IB। So IC divided by IE is the current gain, and it is equal to alpha, and it is less than 1 because IC is less than IE by an amount of IB। अच्छा, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हम कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं फॉर अ कॉमन बेस एम्पलीफायर। वर्टिकल एक्सिस पे क्या होता है? करंट IC। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास है VCB। और IC और I उसमें जो थर्ड पैरामीटर है वो है आपके पास IE। तो जब कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है, जब एमिटर करंट इंक्रीज होता है तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि मेन सप्लाई तो उधर से आती है ना, एमिटर ही सप्लाई देता है ना आपके पास, एमिटर। अच्छा, जब आप इस कार को लाड करते हैं तो उसके लिए हमने एक डिवाइस का नाम इस्तेमाल किया। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट डिवाइस?
याद था, कर्व ट्रेसर। Yes, sir. Okay, sir. तो इस ये जो करेक्टरिस्टिक्स हम प्लाट करते हैं पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं कर्व ट्रेसर। अच्छा इधर देखें, यहाँ पर जब IE 0 होगा इसका मतलब है कि मीटर टर्मिनल इज ओपन। तो करंट, कौन सा करंट आपके पास फ्लो करेगा? ICO। इस ICO को हम कहते हैं ICBO। ICO is also called ICBO. ICO is the collector current when emitter terminal is open. तो देखिए नीचे रीजन जो आपके पास नजर आ रहा है, ये देखें कलेक्टर जो करंट है वो ऑलमोस्ट इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को उसने टच कर दिया। इसका मतलब है कलेक्टर करंट 0 हो गया। तो कलेक्टर करंट जब 0 हो गया तो इसके नीचे जितना भी नीचे जो रीजन आ रहा है वो कट ऑफ रीजन है। इधर जो वर्टिकल रीजन आपको नजर आ रहा है जहां पर ये, इसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन। और जो अनशेडेड रीजन है ये है एक्टिव रीजन। तो हमारे पास 3 रीजन हैं, बल्कि चौथा रीजन भी है, वो जो है उसको हम डिस्कस नहीं करते। उस कौन सा चौथा रीजन, कौन सा रीजन होगा आपके ख्याल में? Breakdown. ब्रेकडाउन रीजन। वो ब्रेकडाउन रीजन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारा जो है ना ये जो अनशेडेड रीजन है इसको कहते हैं एक्टिव रीजन। और ये जो एक्टिव रीजन है ये एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सेचुरेशन रीजन है और कट ऑफ रीजन है ये हम इस्तेमाल करते हैं स्विचिंग एक्शन के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछने के एक्टिव रीजन की क्या एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लीफिकेशन। और ये जो सेचुरेशन रीजन है और कट ऑफ रीजन है ये हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर के 2 मेजर एप्लीकेशन है ना। व्हाट आर द 2 मेजर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर? एम्प्लीफिकेशन एंड स्विचिंग ऑपरेशन। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि कट ऑफ रीजन में क्या होता है? इन कट ऑफ रीजन बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस। इन सैचुरेशन रीजन बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस। एंड व्हाट हैपन इन एक्टिव रीजन? इधर क्या होता है? One is forward. Base emitter junction is forward bias and collector base junction is reverse bias. Base emitter junction is forward bias and base collector junction is reverse bias. ये याद रखें। कट ऑफ में क्या होता है? What happen in cut off region? Both are Reverse reverse biased. bias. Both junctions are reverse bias. What happen in saturation region? Both are forward biased. Both junctions are forward bias. And what happen in active region? Base to emitter is forward biased. Base to collector is reverse biased. Base emitter junction is forward bias and base collector or collector base junction is reverse bias, which is the normal operation of the device. तो ये जो shaded region है, saturation region and cut off region, they are used for the purpose of switching operation, and the unshaded area it is used for amplification purpose. So how many characteristics we have for a given configuration? 2 characteristics. One is called input characteristics and the other is called output characteristics. So in case of common base configuration, input characteristics is also called driving characteristics. So it is a plot. Input characteristics is a plot between input current, which is IE, and the input current, which is VBE, and for a given value of VCB, which is the output voltage. अभी आप देखें यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो कर रहा है कि आप देखें VCB आप इंक्रीज करते जाएं, लेकिन एक पॉइंट की मतलब है आप देखें IC और IE आपस में बराबर हैं। अभी आप इस तरह करें, जैसे अब तालाब में जो है ना आपके पास
5 लीटर का पानी पड़ा हुआ है तो 5 लीटर से ज़्यादा तो पानी आप नहीं निकाल सकते ना, जो पड़ा हुआ है वही है, तो जितना आई है उतना आई सी है, आई सी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू आई ई, इसलिए ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कर्व्ड नहीं है, So, ठीक है ना। आई सी इज इक्वल टू आई ई, इसलिए ये जो है ना आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल पैरेलल नज़र आ रहे हैं कि आई सी और आई आपस में तकरीबन बराबर हैं, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये स्पेसिंग भी यूनिफॉर्म है, ये नहीं कि ये जो है ना एब्रप्ट चेंज आ रहा है, आपके पास चेंज नहीं आ रहा, स्पेसिंग यूनिफॉर्म है। तो जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं, कौन सा डिवाइस कहते हैं? कर्व ट्रेसर। हाँ, इन कर्व्स को प्लॉट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जो भी, उसको कर्व ट्रेसर कहते हैं। कितने रीजन हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर या कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स? 3 regions, Three. sir. 3। कौन सा हिडन, कौन सा इसमें नजर आ रहा है? हिडन नजर उन्होंने शो नहीं किया, हिडन रीजन कौन सा है इसमें? हिडन रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, वो ब्रेकडाउन रीजन जो है ना वो उन्होंने वो शो नहीं किया उसमें। So we are interested in these 3 regions: active region, cutoff region, saturation region. Active region, when base emitter junction is forward bias, collector base junction is reverse bias. This region of operation is called active region. This region is used for amplification purpose. Cutoff region and saturation region both are used for switching purpose. And in cutoff region, both junctions are reverse bias. In saturation region, both